Hello everyone, I welcome you all to Manu Law Classes Current Affair Analysis. In this video, we will discuss September 13th, The Hindu Delhi edition newspaper. Our first topic is about a virus, an outbreak which occurred in Kerala. So here we see that Nipah outbreak occurred in Kerala and it claimed 2 lives. So we will first discuss about Nipah virus, its source and why it happens and what is the main reason behind Nipah virus, because it is a very important disease which is happening. So start writing down about Nipah virus. So first of all, if we talk about source, so the natural host of Nipah virus are fruit bats. None other than fruit bats, no other bat can cause it. Only fruit bat is responsible for the Nipah virus. And it is belonging to Pteropodidae family, and here it is widely found in the area of South and Southeast Asia. These bats or the fruit bats are found in South and the Southeast Asia. But actual source of the infection is not yet known. Now, how it is transmitted? This is another important point. So, the infection is generally transmitted from animals to humans, or we can say it is zoonotic in nature. Zoonotic are those diseases which transfer from animal to humans. As we saw in the case of COVID virus also, there was a theory that it first occurred in the bats and through that they came into humans. So these are the diseases which is transferred from animal to human. They are zoonotic in nature, and this particular disease, Nipah virus, it is also zoonotic. So here the main animal which basically spread this disease are first of all the fruit bat. Just remember only fruit bat, and second one is pigs. Through that also the disease can be transferred. Human to human transmission, just like we saw in the case of COVID, it is also possible once a human is infected. So it can also affect other human. So human to human transmission is also possible, and it can also be transmitted via contaminated food. Okay, so just remember these things. So basically Nipah virus, it causes infection and sometimes it can also be fatal. So patient either show no symptom, or that's why it is very difficult to detect, but in some cases they have respiratory problem or they have sometimes encephalitis. These are the symptoms. Those who are affected with Nipah, they can develop encephalitis or any respiratory problem. So as this is a viral disease, so that's why we don't have any concrete treatment right now available for this disease. They are basically, there is no vaccine or such kind of thing right now developed. So it is very dangerous, and also if the condition worsens, so the patient can die as they died in Kerala. Now talking about the history of Nipah virus, like from where it came and what is the first country which was basically affected by this particular virus. So it was first identified in the year of 1999 in Malaysia. मलेशिया में आपका सबसे पहले 1999 में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था नीपा वायरस, और उसके बाद ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपका बांग्लादेश एरिया जो था वहां पे स्प्रेड आउट हुआ, और फिर कुछ इन्फेक्शन हमें बाद में जाके देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली केरला के पास. ठीक है, केरला के अंदर बहुत सारे केसेस नीपा वायरस के पहले भी देखे गए थे, एंड राइट नाउ अगेन इट इज रिसर्चिंग. सो दिस इज अबाउट द Nipah virus. These are the important details which you should know with regard to the Nipah virus. Now, going back to our newspaper. So here Nipah virus, it break out again, and here it took 2 lives. Okay, so this is about this whole disease. It is transmitted through animal such as bats and pigs. Human to human transmission is also possible, and through the contaminated food it can also be transferred. Another important news is about Libya. So 2,300 people are till now dead
because, or they are missing because of the flash flood in the Libya city. फ्लैश फ्लड आपका एक ऐसा टाइप का फ्लड होता है जो अचानक से बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ है, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्लैश फ्लड. तो 2300 people are missing and some of them are killed, or we don't know exact the statistics, but it is very devastating. Till now they are missing, so we are assuming them as dead. So Libya is again hit by a flash flood. Now moving further toward our next important article, there was a judgment of the Delhi High Court. It basically said that maintenance law not meant to create army of idle people. So here basically the Delhi High Court said that on Tuesday it refused to direct a man to pay maintenance to his estranged wife, and said that the maintenance is not meant to create an army of idle people waiting for dole by the partner. So this is a new judgment, you should know about that. Moving further toward our next important article that is coming in from the state section, and here we will discuss about a new law which has been passed by the center, a new scheme which will be launched by center. But before that, we will discuss about the data center. So here there is a new controversy which has been erupted in the Ashoka University over the disbanding of the Trivedi Center for the Political Data. And here the center's scientific board, it consisted of eminent academicians and intellectuals such as Christoph Zafrolot and Chief Election Commissioner. So this particular data center now will be disbanded. This was about this whole news. Now moving further toward our important article from the editorial section. So here we have two important bodies, or we can say here we have two important points of near the border. So Mr. Amit Shah visited two important points. First one is Harami Nala and second one is the border observation post of the BSF in that sector of the Sar Creek area of the Kutch and Gujarat. So just remember these 2 points. There has been development. The aptly named Harami Nala is basically a rogue or a treacherous channel. It was named in English and that's why the name is Harami Nala. And it is one of the inhospitable place along the border. यहाँ पे कोई रहता नहीं है और यहाँ की conditions भी आपकी बहुत ज़्यादा vary करती हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी ऐसा ही रखा गया है. साथ में ये बहुत सारे बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर मिसचीफ्स के लिए फेमस है और यहाँ पे बेसिकली ये एरिया ऐसा है कि जो इनफिल्ट्रेटर होते हैं पाकिस्तान साइड से, टेररिस्ट जो होते हैं या आप कह सकते हैं जो आपके ड्रग बेचते हैं, वो सब इनफिल्टर कर जाते हैं इंडिया के अंदर, बिकॉज यहाँ पे एक पोरस बॉर्डर है. सो दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड हरामी नाला. Now, media clip showed that Home Minister is visiting BOP 1170 to take stock of the situation, and he rightly averted that it is now impenetrable as a result of round-the-clock border vigilance. तो यहाँ पे आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके थ्रू आपका ये जो एरिया है हरामी नाला वाला, ये आपका अभी चेक किया जा सकेगा, सर्वेलांस पे रखा जा सकेगा. So according to the BSF release, Home Minister laid the foundation stone for a mooring place at Koteshwar in Kutch and also inaugurated the newly constructed Chidia Mood, Biarbet, Link Road and OP Tower in the Harami Nala area. Just remember all these important points. एक तो आपका mooring place जो है वहां पे इन्होंने कोटेश्वर के पास इनॉग्रेट किया है, चिदिया मोड, बियारबाट, लिंक रोड और साथ में एक ओपी टावर स्टैब्लिश किया है हरामी नाला एरिया में, जिसके थ्रू यहाँ पे आपका 24/7 सर्वेलांस हो सकता है इस हरामी नाला एरिया का. अब ये जो आपका टावर है ये आपका 9.5 मीटर टॉल है और यहाँ पे आपके कैमरास लगे हैं, जूम कैमरास लगे हैं, रेजोल्यूशन पैन टिल्ट जूम कैमरास. इसके थ्रू हम इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकेंगे और इस एरिया को अच्छे से सर्वेलांस करेंगे. Now this will come up at the BOP 1164 and further north from the BOP 1170 along the vertical line of the international border.
इस पर्टिकुलर एडवांटेज क्या है इस पर्टिकुलर टावर का कि आपका जो 3 करोड़ का यहाँ पे स्पेंड किया जाता था इस पूरे एरिया में, वो अब आपका रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज वी आर हैविंग अ लाइव कैमरा फीड, कंटिन्यूअस सर्वेलांस। तो इसके चलते जो हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम होती थी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। नाउ दीज ऑल इनिशिएटिव्स टुगेदर वर्थ ₹361.35 करोड़, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजन है सिक्योर बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने के लिए, उसी के तहत ये पूरा सर्वेलांस टावर बनाया गया है। मूरिंग प्लेस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा। इसमें टोटल एलोकेटेड बजट आपका 257 करोड़ का है, और इसके थ्रू आपका जो रिपेयर मेंटेनेंस, जितने भी आपके बिगर वेसल्स हैं जो आपके इस एरिया में बेसिकली सर्वेलांस का काम करते हैं या इस एरिया में सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम करते हैं बीएसएफ में इस क्रीक एरिया में, तो उसके मेंटेनेंस के लिए ये आपका मूरिंग प्लेस प्रोजेक्ट बनाया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट हरामी नाला। हरामी नाला इज बेसिकली अ नेचुरल वाटर बॉडी जो कि आपका 25 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, और ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द पाकिस्तान इनटू द कच्छ जस्ट साउथ ऑफ द बिगाकोट सेक्टर ये आपका फ्लो करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मड फ्लैट्स एरिया हैं, लो और हाई टाइड्स एरिया हैं जो आपके इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में लाई करते हैं। इस वाटर बॉडी का ऐसा नेचर है, और 22 odd kilometers of the channel lie in the Indian side of the vertical line of the IB between India and Pakistan, which itself is not contested. Okay? जो आपका हरामी नाला वाटर बॉडी है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक यूनिक है। इट हैज टाइडल सर्च फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड एंड ओवर द ईयर ये जो चैनल है ये इंडियन साइड में एक्सटेंड कर रहा है, और पाकिस्तानी साइड में एक चीनी बांध, क्योंकि ये चाइना की हेल्प से बनाया गया था, तो ये चीनी बांध जो है वो बनाया गया है इस पूरे टाइडल वाटर को प्रिवेंट करने के लिए कि ये नियर बाय एरिया में पानी मतलब इकट्ठा ना कर दे, इनंडेट ना कर दे, पानी ना आ जाए। तो इसीलिए ये जो आपका चीनी बांध है वो इस पानी को कंट्रोल करने के लिए, टाइडल वाटर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो आपका पानी है ये इंडियन रीजन के साइड या इंडिया के साइड अब ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। इंडियन साइड में यहाँ पे कोई भी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये आपका कोई भी हैबिटेबल लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे इनहैबिटेबल एरिया है, तो इसीलिए ये आपका पूरा स्प्रेड है हरामी नाला एरिया, एम्प्टीनेस है यहाँ पे, एक्सेप्ट इन द रियर एरिया विच इज कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां पे आपकी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हुई हैं जो आपका सॉल्ट, ब्रोमाइड, केमिकल्स बनाती है जो आपका इस मिनरल रिच वाटर से बन सकता है। तो इसका जो थोड़ा सा एरिया है वहां पे फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हैं। अदर देन दैट इंडियन साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। अब ये जो हरामी नाला है ये बहुत ज्यादा रिच है फिशिंग साइड में, स्पेशली यहाँ पे प्रॉन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो प्रॉन्स के कल्टीवेशन के लिए, या हम कह सकते हैं प्रॉन्स के इसके लिए, फिशिंग के लिए आपका ये जो हरामी नाला एरिया है ये फेमस है, और साथ में एक आपका मार्शी टेरेन भी ये स्टैब्लिश करता है, जिसके चलते आप दिस इज वेरी इम्पॉसिबल टू अप्रोच और पेट्रोल ऑन फुट इवन ड्यूरिंग द लो टाइड। तो इसीलिए ये जो टाइड्स हैं दे आर ऑल्सो लाइक ट्रेचरस टाइड, मोरासेस, और साथ में आपका बहुत ज्यादा हीट होती है जब आपके समर के टाइम में, तो ये पूरा एरिया जो होता है हरामी नाले का ये आपका एक तरीके से हम इस पे सर्वेलांस नहीं कर सकते हैं। साथ में हरामी नाला एरिया जो है इंडियन साइड से तो ये ऐसा है कि वी कैन नॉट सर्वेलांस इवन ऑन फुट इवन इन द समर साइड और लोअर टाइड रीजन। साथ में आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा अनमैनेजेबल एरिया हो जाता है जहां पे हम सर्वेलांस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं हम बात करें पाकिस्तानी साइड की तो ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है फ्रॉम पाकिस्तानी साइड। तो जो पाकिस्तानी फिशिंग बोट होते हैं दे ट्राई टू कम स्मॉल क्रीक्स में आते हैं, और ये इंडिया का जो हरामी नाला साइड है उस साइड भी आ जाते हैं, और इनको बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फिशिंग जो है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इस हरामी नाला एरिया में, और साथ में प्रॉन्स की फिशिंग बहुत ज्यादा की जाती है, मतलब प्रॉन्स को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहाँ से। तो इसीलिए दिस इज एन एडेड एडवांटेज फॉर द पाकिस्तानी एंड, क्योंकि पाकिस्तान के लोग आके यहाँ पे इस पूरे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और यहाँ पे कई बार साथ में एक तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्स जो आपका फिशिंग है वो पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या होता है टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है,
इंडियन साइड में, साथ में जो आपका ड्रग है वो आपका इंडियन साइड में आपका स्मगल होता है और साथ में आपका आर्म्स स्मगल होता है। तो दिस इज अ रीजन और दिस इज अ प्रॉब्लम जिसके चलते आपका हरामी नाला एरिया में सर्वेलांस बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यहाँ पे ये जो एंट्री पॉइंट है हरामी नाला एरिया की इंडियन साइड में, it could not be approached by the BSF personnel because there was a lack of infrastructure। इसीलिए यहाँ पे स्मॉल पेट्रोल बोट से ये लोग क्या करते थे, सर्वेलांस करते थे। बट नाउ द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड जब से आपके ऑल टेरेन व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि हमने इटली से लिया है। तो इसके थ्रू हम इस एरिया में थोड़ा आपका अब कंपेयर टू पहले के अब हम यहाँ पे सर्वेलांस कर सकते हैं। इसके अलावा जब से आपका ये जो ओपी टावर स्टैब्लिश हुआ है उसके चलते अब राउंड द क्लॉक एवरी टाइम वी कैन डू सर्वेलांस विद द हेल्प ऑफ zoom camera which we have installed. Now these are not foolproof मेवल, foolproof कोई मेजर नहीं लिया गया है until an embankment was constructed। यहाँ पे अगर हम हरामी नाला एरिया के माउथ के पास अगर जहां से ये इंडिया में एंटर करता है वहां पे अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर दें तो इसके थ्रू हमारा ये जो एरिया होगा ये और ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। आफ्टर 2014 नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट they said that there will be an emphasis on border and the coastal security और यहाँ पे past 9 years में हमें देखने को मिलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है they have also ramped up the creation of composite BOPs और साथ में क्रीक एरिया में हरामी नाला एरिया में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपका किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहली बार विजिट किया है होम मिनिस्टर ने इस एरिया को और बीएसएफ पर्सनल इस सेक्टर में इंक्लूडिंग द कमांड्स कॉल्ड द क्रीक क्रोकोडाइल्स यहाँ पे और जो फोर्स वाटर विंग है इन लोगों ने फोकस गाइडेंस दिया, लीडरशिप दिया और इसके थ्रू उनका मोरल बूस्ट हुआ। सो जस्ट रिमेंबर अबाउट द हरामी नाला एरिया एंड ऑल द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स व्हिच इज देयर। Now moving toward our another important news that is with regard to the Delhi Special Police Establishment Act। तो यहाँ पे जो सेक्शन 6A है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि इट हैज रूल्ड इन इट्स 2014 वर्डिक्ट और यहाँ पे इन्होंने इनवैलिडेट कर दिया था इस लॉ को जो आपका गवर्न करती थी कि सीबीआई will have retrospective effect from the day of the provision it was introduced in 2003। मतलब बेसिकली जो आपका 6A था according to the government it has retrospective। retrospective का क्या मतलब होता है, जब से ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है उस समय से लेके अगर सपोज करिए मैंने 2014 में कोई लॉ बनाया और उसका इफेक्ट जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है ये जो 2003 में बना है तब से होगा। अब सेक्शन 6 है ऐसा है क्या इसमें लिखा हुआ उसकी अगर बात करें तो ये बेसिकली आपका इन्वेस्टिगेशन करने का जो राइट है, कोई भी करप्शन का चार्ज हो ऐसे ऑफिशियल पे जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हो या उससे अबव हो इन द सीबीआई, ये आपका जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है ये आपका सीबीआई को कंट्रोल करता है या सीबीआई के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो जॉइंट सेक्रेटरी है उसके अबव लेवल के ऑफिशियल्स हैं देयर अगेंस्ट देम द इन्वेस्टिगेशन कैन बिगिन ओनली आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सिंगल डायरेक्टिव दिया गया था आपका जो सेक्शन 6A है उसके थ्रू और इसको रिट्रोस्पेक्टिवली मतलब 2003 से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। So this was invalidated by the Supreme Court, a constitutional bench of Supreme Court. Now talking more about this particular thing, so it was introduced to restore the center single directive as a set of instruction to the CBI on the modalities of holding an inquiry। एक लैंडमार्क केस हुआ था विनीत नारायण केस 1997 में और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था इस डायरेक्टिव को ऑन द ग्राउंड दैट अ स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इम्पीडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। 6 साल बाद सेक्शन 6A को इंट्रोड्यूस किया गया और जो भी आपका प्रायर अप्रूवल का रिक्वायरमेंट था, सेंट्रल का जो प्रायर अप्रूवल चाहिए उसको फिर से रिस्टोर किया गया, लेकिन फिर से 2014 में कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्ट्रक डाउन किया और कहा कि ये आपका वायलेटिव है टू द नॉर्म ऑफ इक्वालिटी। And this was about this whole news. Now moving toward our another important article, यहाँ पे आपको एल नीनो जो है
उसको समझने की जरूरत है, then you will be able to understand this article. So we will first discuss about the El Nino and its effect, then we will discuss about this whole article. So our topic is El Nino, La Nina and ENSO. Okay, so here जब आपका नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, एट द टाइम ऑफ नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन, जब आपका नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, तो उस टाइम पे जो आपका वेदर होता है वो डिपेंड करता है बहुत ज्यादा ऑन द ओशियन टेम्परेचर, कि ओशियन का टेम्परेचर कितना है। बिकॉज वी नो अगर आपका ओशियन का टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो उस कंडीशन में आपका जो प्रेशर होगा वो लो होगा एंड दैट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट रेनफॉल। तो यहाँ पे वेदर जो होता है वो डिपेंड करता है अलॉट ऑन द ओशियन टेम्परेचर, एंड वेयर द ओशियन इज वार्म और टेम्परेचर जो है ओशियन का वो हाई है, उस एरिया में आपका प्रेशर जो होगा वो लो होगा, एंड दिस इज द कंडीशन जहां पे आपका रेनफॉल अट्रैक्ट होगा। पैसिफिक ओशन में जो कि आपका इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है पैसिफिक ओशन का, वहां पे द सन मेक्स द वाटर स्पेशली वार्म। इस एरिया में जो आपका इक्वेटर के पास पड़ता है, यहाँ पे आपका ये आपका अर्थ हो गया 0 डिग्री, ये आपका इक्वेटर हो गया। तो इस एरिया में जो पैसिफिक ओशन का पार्ट पड़ता है, इस एरिया में आपका सन जो होता है, क्योंकि इसकी जो रेज पड़ रही हैं वो डायरेक्टली पड़ रही हैं, और इसके चलते ये जो वाटर होगा ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। सो नॉर्मली जो आपका सरफेस लो प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एरिया एंड इंडोनेशिया एरिया। ठीक है, इंडोनेशिया और जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है, यहाँ पे आपका क्योंकि इस साइड लाई कर रहे हैं तो इधर के साइड आपका जो लो प्रेशर होगा वो जनरेट होगा, और हाई प्रेशर ऑन द अदर हैंड कहाँ पे जनरेट होगा, हाई प्रेशर आपका ऑपोजिट साइड जो है, जैसे कि आपका कोस्ट ऑफ पेरू, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो इसके चलते जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स क्या होती है, जो आपका इक्वेटर के पास जो हवा चलती है उसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो ये जो आपका ट्रेड विंड्स हैं, दे स्ट्रांगली ब्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ भी मूव करेंगी ओवर द पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे आपका जो वार्म सरफेस वाटर है ये आपका वेस्टर्न साइड में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर है। तो इसके चलते आपका क्या होगा, जो पानी होगा वो आपका ऐसे, जो आपका वार्म वाटर होगा, वार्म सरफेस वाटर होगा, वो वेस्टवर्ड साइड मूव करेगा। इसके चलते आपका कन्वेक्टिव स्टॉर्म डेवलप होता है इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया एरिया में। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन जो आपका एक्चुअली होता है। अब हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो और ला नीना के केस में क्या होता है। एल नीनो और ला नीना ये दो अलग ऑपोजिट कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्मल टेम्परेचर से आपका नॉर्मल कंडीशन से वेरी करता है। अब यहाँ पे ये जो इवेंट्स होते हैं एल नीनो और ला नीना की, ये आपका खास करके अगर एल नीनो की बात करें तो इट इज बेसिकली एन इररेगुलर इवेंट ऑफ वार्म या वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन या पैसिफिक वाटर्स, एंड इट अकर्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 7 years। वहीं अगर हम ला नीना की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कोल्ड एपिसोड। ठीक है, इट इज द कोल्ड एपिसोड दैट यूजुअली फॉलोज द वार्म इक्वेटोरियल ridges and it cools between the coasts of South America and Oceania। ठीक है, एल नीनो में ऑपोजिट कंडीशन होगा, ला नीना में जो होता है वो एकदम ठंडा वाला फेज होता है, कोल्ड फेज होता है। तो यहाँ पे अगर हम एल नीनो की बात करें, इस दोनों इवेंट्स की बात करें, तो ये ऑन एन एवरेज आपके 7 साल पे होते हैं,
लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं होते और इसीलिए इस पूरे साइकिल को कहा जाता है एनसो और वी कॉल इट एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो जो होता है इट इज अ वार्म फेज और यहाँ पे आपका बैंड ऑफ वार्मर वाटर इट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। वही ला नीना इट इज अ कोल्ड फेज और यहाँ पे जो आपका बेंड होता है कूलर वाटर का ये आपका ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है और इसके चलते आपका पूरा जो नियर बाय एरिया का वेदर होता है वो अफेक्ट होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस इंडियन मानसून। इंडियन मानसून की अगर हम बात करें सो इंडियन मानसून में अगर ला नीना का कंडीशन बन रहा है इट विल बी हैविंग मोर रेनफॉल, ठीक है। इन केस ऑफ ला नीना condition it will be having more rainfall, but in case of El Nino condition यहाँ पे हमारा जो rainfall होता है वो usually reduced होता है, ठीक है। So these are the two condition El Nino, La Nina and Enso. Now we will go back to our article. यहाँ पे basically आपका ये question आया है, यहाँ पे ये पूरा article आया है that how the disruptive weather and climatic phenomena in India is demonstrating the complexity of our precipitation system। मतलब जो हमारा रेनफॉल वेरी कर रहा है उसका कंडीशन ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो as we know there was western disturbance which brings much needed moisture from the European Sea to the western Himalayas and parts of the northern India in the winters and the spring। लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो western disturbance it lived up to its name and remained active till late into the summer। अब यहाँ पे ये जो आपका वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस ऑफ लाइफ हुआ है हिमालयन रीजन में, इतनी ज्यादा बारिश पड़ी है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज वेरी कंडीशन। नाउ व्हाट इज एन एल नीनो फेज। तो क्लाइमेट लिंक्ड वार्मिंग जो होती है, जैसा मैंने आपको बताया, एल नीनो इज अ वार्म फेज। तो ये आपका जो एल नीनो का फेज होता है इसके चलते जो आपकी विंटर प्रेसिपिटेशन होती है वो वीकेन हो जाती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू आपकी विंटर प्रेसिपिटेशन आती है वो वीकेन हो जाती है और इट शिफ्ट टू मोर इंटेंस इवेंट्स आल्सो इन अदर पार्ट। और अगर ये आपका गर्मी में होता है तो यहाँ पे कंसिक्वेंसेस और ज्यादा कंसर्न के हो जाते हैं। तो यहाँ पे एल नीनो फेज जो होता है एनसो का, इट इज अ फिनोमिना इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। It was intensifying and likely to affect the southwest monsoon। जो साउथ वेस्ट मानसून जिसके थ्रू हमें रेनफॉल मिलती है वो आपका एल नीनो के चलते इफेक्ट होता है एंड इन द कंडीशन ऑफ एल नीनो वी गेट लेस रेनफॉल। So this is what the major concern is because El Nino will soon develop। अब इसके चलते when there is less rainfall तो उसके चलते हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट होता है। जस्ट रिमेंबर दीज टू टर्म्स। ग्रीन वाटर का मतलब होता है रेन फेड सॉइल जो मॉइस्चर टैप करता है बाय द फूड एंड द कैश क्रॉप। लाइक बारिश पड़ी तो जो आपका क्रॉप्स पानी को ट्रैप करेंगे दैट इज कॉल्ड ग्रीन वाटर। वहीं आपका दूसरा होता है ब्लू वाटर। ब्लू वाटर जो होता है जैसे बारिश पड़ी तो उसके चलते आपका जो रिवर, लेक, रिजर्वॉयर या ग्राउंड वाटर इसने जो पानी को स्टोर कर लिया दैट इज व्हाट वी कॉल ब्लू वाटर। तो यूजुअली जो हमारा इरिगेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लू वाटर। अब एल नीनो और ये जो आपके एसोसिएटेड क्लाइमेटिक फिनोमेना है इसके चलते जो आपका रेन फेड एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एल नीनो के चलते रेनफॉल कम आएगी या आपकी लेट आएगी। तो इसके चलते जितनी भी आपकी डैम्स होती हैं, रिजर्वॉयर्स होती हैं, इरिगेशन सिस्टम होता है, these all things which is dependent on the green water they also get affected। और यहाँ पे अगर हम अपने डेली डाइट की बात करें तो our daily diet is basically dependent on these cooking oil to diverse food and these all will basically change and they all depend on the green water। तो इसीलिए एल नीनो जब भी आता है that can cause a lot of problem to the kharif crop and the other crops as well। एल नीनो और नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर बात करें तो एट द एंड ऑफ द साउथ ईस्ट मानसून ये जो आपके ब्लू वाटर स्टॉक होते हैं रिजर्वॉयर में जो होते हैं दे एक्चुअली डिटरमिन कि क्या हमारे राबी क्रॉप को उगाने के लिए कितना पानी
अवेलेबल है, वाटर सिक्योरिटी कितना है। तो इसमें आपका जो वाटर, ग्रीन वाटर अवेलेबल होता है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इन द साउथ ईस्ट इंडिया, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है नॉर्थ में, तो इसके चलते आपका ये जो ब्लू वाटर होता है इसका नंबर बढ़ जाता है। सो इसके थ्रू अगर एल नीनो आएगा तो आपका, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रीन वाटर जो है ये रिड्यूस हो जाएगा और ब्लू वाटर का स्टॉक भी कम होगा। सो दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट द क्लाइमेट वेदर एज वेल एज द फूड सिक्योरिटी। सो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हेयर कि सेंट्रल इंडिया हाईलैंड जो होते हैं दैट एनकम्पासिंग 36 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दे आर एमर्जिंग एज क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट, एंड यहाँ पे आपका जो वाटर, फूड और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है दैट इज अ क्रिटिकल इशू। So this was about this whole article. Moving further toward our next important article that is coming in from the government sector, and here the center will start Ayushman Bhav health scheme from today. So with this particular Ayushman Bhav campaign, which has been inaugurated by President Draupadi Murmu, she virtually inaugurated it, and here it aims to provide the healthcare service to every village and town in the country. ये कैंप जो था हेल्थ मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया था, और यहाँ पे ये चाहते थे कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नेशन वाइड हेल्थ केयर इनिशिएटिव सबके पास पहुंचे, जिसके थ्रू सबके पास हेल्थ केयर सर्विस का अवेलेबिलिटी हो, और साथ में ये जो खास करके विलेज और टाउन जहाँ पे मेडिकल हेल्थ इतना अच्छे से, मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो वहां तक भी ये आपका पहुंचे। सो मिनिस्ट्री विल ऑल्सो लॉन्च आयुष्मान आपके द्वार 3.0 प्रोग्राम, जिसके थ्रू जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, those who are enrolled in the Pradhan Mantri Jan Arogya scheme, they can download their health card on their own. So this is a very important scheme. Now there is another news which is talking about the farmers are the Annadata and protect their right, as said by the president. So here the President Draupadi Murmu, they called for concrete step to conserve the traditional seed varieties and eco-friendly farming practice. You should also know about the zero budget farming. It was in news. तो ये आपका इको फ्रेंडली तरीका होता है फार्मिंग का, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज जीरो बजट फार्मिंग. So while inaugurating the global seminar which was organized by International Treaty on the Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the Food and the Agricultural Organization on Farmers' Right, she said that there is a need of traditional farming techniques which need to be saved. And she was also presenting the Plant Genome Savior Farmer Recognition 2020 to 21 to Parappi Amma. She is a tribal farmer from Vithura in Kerala. So just remember about this award which has been given. Now moving toward other important article which is coming from the World Affair. So here the North Korea Kim, he arrived in Russia to meet Putin. So this was a news, and here they will basically, likely there will be a summit which will be indicating Putin-Kim summit, और यहाँ पे आपका स्पेशल फोकस जो होगा मिलिट्री कॉपरेशन के ऊपर होगा. So soon we will see any drill or any technology transfer between these two countries. So this is all for today. I hope you like this lecture. I hope you got to know a lot of things. Thank you for listening to this lecture.